ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اندھیرا اب آہستہ آہستہ اجالے نگلنے لگا تھا۔ ہم لوگ قریباً غیر آباد علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ ایسے مقامات ہوائی اڈوں کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں کی مصنوعی ویرانی اور کسی حد تک کیموفلاج سسٹم نے اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ منزل اب دور نہیں۔ ہم ایڈمن ایریا کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس دوران میرے سپائی ماسٹر کی کوشش یہی رہی کہ کوئی ہم سے ٹکرانے نہ پائے۔ ہم سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ میں سفر کر رہے تھے۔ یہ سڑک کچھ زیادہ بارونق نہیں تھی، لیکن اسے بے رونق بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ ہر 3-4 منٹ کے بعد کوئی تیز رفتار سواری تارکول کی سیاہی پر پیلی روشنیاں پھیلاتی زن سے ہمارے قریب سے گزر جاتی۔ ہم گاڑیوں کی روشنیوں کی زد سے بچنے کے لیے درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے۔ کبھی کبھی کوئی پیدل شخص بھی ہم سے ٹکرا جاتا، لیکن عموماً ہمیں نظر انداز کر کے گزر جاتا، کیونکہ یہ کوئی ممنوعہ علاقہ تو تھا نہیں۔ البتہ اس بات کے امکانات 100% تھے کہ سیکیورٹی نے خصوصاً ان حالات میں یہاں کے چپے چپے پر نظر رکھی ہوگی۔ اب ہم جس جگہ پہنچے تھے وہاں آفیسرز کے بنگلوں کی قطاریں شروع ہو گئی تھیں۔ بڑی سڑک کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک ذیلی سڑک اندر کو گھومتی، جس کے دونوں اطراف افسران کی رہائش گاہیں تھیں۔ ایسے ہر سلسلے کے آغاز پر ایک سنگ میل پر اس قطار میں موجود بنگلوں کے نمبر لکھے ہوتے تھے۔ سپائی ماسٹر ان کے نزدیک کھڑے ہو کر اندھیرے میں قریب سے نمبروں کا جائزہ لیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بالآخر گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ ہم اس اسٹریٹ کے کونے پر پہنچ چکے تھے جہاں بنگلوں کی 2 رویا قطاروں میں سے ایک قطار کے آخر میں ونگ کمانڈر باٹلا کا بنگلہ واقع تھا۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ صرف 2 بنگلوں کے سامنے افسران کی بیگمات ڈنر ہضم کرنے یا پھر ہوا خوری کے لیے ٹہل رہی تھی۔ ہمارے حلیے خاصے شریفانہ تھے، خصوصاً سپائی ماسٹر تو پہلی نظر میں ایئر فورس کے کوئی افسر دکھائی دیتے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف کچھ فاصلے پر بجلی کے بلب پھانسی پر لٹکے دکھائی پڑتے تھے، جن میں سے 75% تو فیوز تھے اور لے دے کر صرف 25% بلبوں کی بیمار روشنی الیکٹرک پولز کے ارد گرد پھیلے اندھیرے سے جہاد میں مصروف تھی۔ ہم جان بوجھ کر اس سمت سفر کر رہے تھے جہاں الیکٹرک پولز کے زیادہ تر بلب فیوز تھے۔ میں نے اپنے سپائی ماسٹر کا اندیا بھانپ لیا۔ اصل میں وہ چہل قدمی کرتی بیگمات سے کنی کترا کر گزر جانا چاہتے تھے۔ عورت فطرتاً کچھ زیادہ ہی تجسس پسند واقع ہوئی ہے۔ عین ممکن ہے سیکیورٹی کے کسی تربیت یافتہ ملازم کو تو آپ پر شک نہ گزرے، لیکن کوئی معمول ذہن کی عورت آپ کا حلیہ ضرور اپنے لاشعور میں محفوظ کر لے گی۔ ہم ایک دوسرے کے پہلو بپہلو اس طرح چل رہے تھے کہ غور کرنے پر بھی ہمارے چہرے ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپے دکھائی پڑتے۔ پھر وہ مرحلہ بھی بخیر خوبی طے پا گیا اور اگلے چند منٹ کے بعد ہم اس بنگلے کے سامنے گھنے درختوں کی جھنڈ میں کھڑے تھے۔ گیٹ سے باہر لگی کال بیل سے منسلک پلاسٹک کی تختی اپنے پیچھے جلتے بلب کی روشنی میں اسے ونگ کمانڈر باٹلا کی رہائش گاہ بتا رہی تھی۔ عمارت 1 منزلہ تھی۔ یہاں قریباً تمام عمارتیں احتیاطی تدابیر کے پیش نظر 1 منزلہ ہی بنائی گئی تھیں۔ بنگلوں کی اس قطار کی پشت پر خالی میدان میں اگی جھاڑیاں کسی بھی فوجی پناہ گاہ کا کام دے سکتی تھیں۔ دشمن نے یہ اقدامات یقیناً اس ایریا کو کیموفلاج کرنے کے لیے کیے تھے، لیکن چانسز دونوں کے لیے 50-50 تھے۔ ہم نے بھی انہی جھاڑیوں کی اوٹ سے یلغار کرنا تھی۔ بنگلے کے گیٹ سے ملحق باغ میں کسی مسلح سنتری کی موجودگی کے امکانات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی رات کے بمشکل 9 بجے تھے اور اندر جگمگاتی روشنیوں کے عقب سے ویسٹرن میوزک کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر کر یہاں مقیم لوگوں کے ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ آج سنیچر کی رات تھی اور سنیچر کی رات کی بھارتی سوسائٹی میں کیا حیثیت ہے، اس کا اندازہ ہمیں خوب تھا۔ ہمارے اندازے کے مطابق ونگ کمانڈر باٹلا ابھی گھر نہ پہنچا تھا، کیونکہ برآمدے کے سامنے ہمیں کسی گاڑی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ شاید ابھی میٹنگ میں مصروف تھا یا پھر نائٹ کلب میں داد عیش دے رہا تھا، جبکہ ادھر بھی یہی حال تھا۔
ऑफिसर्स कॉलोनी के तकरीबन सभी बंगलों में उस वक्त शैतानियत रक्स फरमा थी। दरख्तों के झुंड से और फिर मेन गेट के ऊपर से झांक कर हमने जोग्राफियाई और माशरती हालात का एक सरसरी सा जायजा लिया। फिर हम घूम कर बंगले की पुश्त पर चले आए, जहां बड़ी बड़ी खुदरौ घास अपनी आगोश वाह किए हमारी मुंतजर थी। इन्हीं झाड़ियों की ओट में हमने अपना शरीफाना लिबास नायलॉन के एक थैले में मुंतकिल किया और उसे स्पाई मास्टर ने अपनी पुश्त पर किट की तरह बांध लिया। ये इक़दाम खालिसतन एहतियाती तदाबीर के पेश नजर था। मुबादा कहीं दूबदू मुकाबले या मिशन के दौरान किसी और चक्कर में हमारे कपड़े फट जाएं तो उनका मुतबादिल मौजूद रहे। फिर दूसरी बात यह भी थी कि हमें यहाँ से फरार होने के लिए भी शुरफा का हुलिया अपनाना था और सफेद पोशों के कपड़े बेदाग होते हैं। हमारे पास 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल, एक छोटी सी क्लोरोफॉर्म की शीशी, अपने बेनाम से वजूद और ट्रेनिंग के सिवा बज़ाहिर और कुछ नहीं था जो हमें ऐसे काम करने के लिए खुसूसी तौर पर दी जाती है। ये सब कुछ इस कदर काफी हरगिज न था कि हम इसी के बलबूते पर इस दहकते जहन्नम का ईंधन बनने चले आते, लेकिन वो कोई और ही जज्बा था जो हमारा मान बढ़ा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरे में भी लोहे का वो मोटा पाइप हिलकोरे ले रहा था जिसके जरिए हमें छत तक पहुंचना था और वहां लेट कर इस हंगामा नावनोश के सर्द होने का इंतजार करना था, जिसके बाद ही कुछ मुमकिन था। हमें ब्रीफ केस पर ही नहीं, घर के जेवरात और नकदी पर भी हाथ साफ करना था और ये सब कुछ इस ड्रामे का हिस्सा था जिसने इस जासूसी कारनामे को महज चोरी जाहिर करना था और चोरों ने ब्रीफ केस भी उसमें मौजूद दौलत या किसी कीमती शय के लालच में उड़ा लिया होगा। हमें इल्म था कि महज आम सी चोरी का शक होने पर इस मामले को ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऐसी इक्का दुक्का वारदातें यहाँ होती रहती थी। हम दोनों झाड़ियों में छुपे पेश आमदा हालात से निपटने के लिए मंसूबा बंदी कर रहे थे। घड़ी की सुइयां अब 10 के हिंसे का तवाफ करने लगी थीं, लेकिन अब तक अंदर होने वाली सरगर्मियों में कोई कमी वाक़ होती नजर नहीं आ रही थी। हमारी तरफ गालिबन किचन था, जिसकी लाइट तब से अब तक मुसलसल जल रही थी। स्पाई मास्टर ने मुझे कुछ हिदायत देकर वहीं रुकने को कहा, फिर अपनी कमीनगाह से बाहर निकले और झुककर तेजी से चलते बंगले की दीवार से जा लगे। उनकी जिस्मानी चुस्ती और फुर्ती पर बेख्तियार मेरे मुंह से नाराए तहसीन बुलंद हुआ। बिलाशुबा वो किसी सर्कस के मंझे हुए जिम्नास्टर नजर आ रहे थे। अपने दोनों हाथों की हथेलियां उन्होंने करीबन अपने कद के बराबर दीवार पर जमाई और उन्हीं हथेलियों के बल पर अपना सारा जिस्म फजा में बुलंद किया। शायद वो खतरा मोल लेकर अंदर के हालात का जायजा ले रहे थे। करीबन 1 मिनट के बाद वो अपनी पहली पोजीशन में वापस आए। अब वो दोबारा उसी तरह झुके झुके मेरी तरफ भागे चले आ रहे थे। कम ऑन बॉय, टारगेट पहुंच चुका है और उसे हर हाल में यहीं हिट करना है। अगर ये मौका निकल गया तो शायद वो फिर कभी हाथ ना आए। उन्होंने मेरे नजदीक पहुंचकर सरगोशी की। ओके मास्टर, मैंने अपनी जगह से रेंगना शुरू किया। मेरा रुख उसी पाइप की तरफ था जिसके जरिए बंगले की छत पर पहुंचना था। मास्टर मुझसे कुछ फासले पर जमीन पर कोहनियों के बल लेटे, हाथ में पिस्तौल लिए छत पर नजरें जमाए हुए थे ताकि किसी हंगामी सूरत हाल से निमट सकें। महज 2 मिनट मैंने छत तक पहुंचने में खर्च किए। छत पर पहुंचकर मैंने लेटे लेटे चारों अतराफ का जायजा लिया। इर्द गिर्द तमाम बंगलों की छतें वीरान दिखाई पड़ती थीं। असल में इन बंगलों की बनावट ही कुछ इस तरह की गई थी कि उनकी छतें ज़ेरे इस्तेमाल नहीं आती थीं, इल्ला ये कि कोई हमारे जैसा जरूरतमंद किसी अशद जरूरत के तहत उन्हें इस्तेमाल में ले आए। हर तरह के खतरात से बेनियाज होकर मैंने छत के एक कोने पर लेटे लेटे पेंसिल टॉर्च रोशन करके मास्टर को ग्रीन सिग्नल पास किया और दूसरे ही लम्हे वो पाइप के नजदीक पहुंच चुके थे। ऊपर पहुंचने में हस्बे तवक्को उन्होंने मुझसे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा किया। फिर हम दोनों एक दूसरे से कुछ फासले पर लेटे आसमान पर तारे गिनते रहे। खुदा खुदा करके रात के 12 बजे सारी कॉलोनी अंधेरे में डूब गई। उसके बाद भी हमने आधा घंटा मजीद इंतजार करने का फैसला किया। आधे घंटे के बाद स्पाई मास्टर का मजबूत हाथ मेरा शाना सहला रहा था। ये कुछ कर गुजरने का इशारा था। हमने मंसूबा बंदी पहले से कर रखी थी और अब उसी के मुताबिक हमें हरकत में आना था। लेटे लेटे हमने गर्मजोशी से एक दूसरे का हाथ दबाया और स्पाई मास्टर करवट बदल कर छत के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। उस छत से वो बावर्ची खाने की छत पर पहुंच गए। मैं इस दौरान उन पर नजरें जमाए वहीं लेटा रहा। फिर मास्टर ने चंद लम्हे बाद मुझे अपनी जगह पहुंचने का इशारा किया और जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा वो दीवार पर पहुंच गए। अचानक मेरी छठी हिस्स ने चिल्लाकर किसी खतरे की निशानदही की थी।
अभी तक मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से उस गली नुमा रास्ते पर नजर डालना मुमकिन नहीं था, जो कमरों की कतार और चार दीवारी के दरमियान वाक़ थी। मास्टर को अलबत्ता सब कुछ बआसानी नजर आ सकता था। मैंने उनकी तरफ नजरें दौड़ाई तो वो किसी ऑक्टोपस की तरह दीवार से लिपटे नजर आ रहे थे। वो इस तरह बेहिस्सो हरकत दीवार से चिमटे हुए थे कि जब तक कोई करीब आकर उन्हें न देख लेता नजर न आ सकते थे। फिर मुझे वो अफरीद भी नजर आ गया जिसने उन्हें दुबकने पर मजबूर किया था। ये वो कमबख्त गनमैन था जो शायद किसी जरूरत के तहत इस तरफ आ निकला था, वरना इतना मुस्तैद होने की तवक्को उससे नहीं की जा सकती थी कि वो बंगले में घूम फिर कर उसकी चौकीदारी कर रहा हो। 303 की एक राइफल उसके कंधे से लटक रही थी और वो बगैर आवाज पैदा किए शायद बावर्ची खाने पर ही नकब लगाने जा रहा था। मेरा नीचे का सांस नीचे और ऊपर का ऊपर रह गया। वो जरा सी भी नजर ऊपर उठाता तो मास्टर उसे नजर आ जाते। बात ये नहीं थी कि वो हम पर गालिब आ जाता, यह हमारी गिरफ्तारी का खतरा था। मुमकिन है ऐसा भी रहा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके साथ मामूली से मार्के की सूरत में भी हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर सकता था और ये नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त होता। मैंने सांस रोके हुए ही खुद को ऐसी पोजीशन में कर लिया था कि किसी भी खतरे के पेश नजर यहाँ से जस्त लगाकर उसका टेटवा दबा दूं। लेकिन इस पोजीशन में आने के लिए भी मुझे महज चंद सेकंड ही में जिन आसाब शिकन लम्हात से गुजरना पड़ा वो मेरे लिए जानलेवा हद तक अजाबदेह थे। यहाँ हरकत में बरकत नहीं, मौत थी। मेरी आंखें बैक वक्त गनमैन और सर पर टिकी हुई थी, गनमैन पर तो फितरतन और मास्टर पर किसी भी कौशन के लिए। मैंने इस कमजोर लम्हे में अपनी कमांड उनके हाथ देकर खुद को एक तरह से महफूज तसव्वुर कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। नौवारिद जब इस मकाम से आगे निकल गया तो एक तरह मेरे तरख्ते आसाब को तमानियत नसीब हुई। वो चोरों की तरह दबे पांव चलता किचन की तरफ आ रहा था। बचे कुछ शानदार खानों की इश्तिहा उसे मौत के मुंह में खींच लाई थी। फिर हमारे देखते ही देखते वो बावर्ची खाने में जा घुसा। उसके अंदर घुसते ही मास्टर ने दीवार पर लेटे लेटे अपने दोनों हाथ बुलंद करके उन्हें एक दूसरे की मुखालिफ समत में काटा। ये इस अमर का इशारा था कि मैं उसे यहीं दबोच लूं। उसके साथ ही सर छिपकली की तरह दीवार के साथ चिमटे चिमटे जमीन पर आ लगे। अब वो एक कमरे में दाखिले के दरवाजे की ओट में चुपके खड़े थे। मैं तकरीबन लौटता हुआ दीवार पर पहुंचा और बगैर आवाज पैदा किए किचन की दीवार से आ लगा। स्पाई मास्टर हाथ में पकड़े पिस्तौल पर साइलेंसर फिट कर रहे थे। अब उन्होंने बावर्ची खाने के उस दरवाजे को कवर कर रखा था जिससे गनमैन की आमद मुतवक्के थी। मैं बगैर आवाज पैदा किए कदम कदम आगे बढ़ता अब उस खुले दरवाजे की एक पट की ओट में खड़ा था जिससे वो अंदर दाखिल हुआ था और जिससे उसे बाहर भी निकलना था। दूसरे ही लम्हे पतलून की बेल्ट में उड़सी नायलॉन की वो डोरी मेरे हाथों में थी जिसने उसके लिए मौत का फंदा साबित होना था। सर ने बाएं हाथ की उंगली से मुझे किसी इंतहाई कदम से बाज रखने का इशारा किया। वो बहरहाल सिविलियन थे या फिर कोई मसलहत उनके पेश नजर रही होगी, क्योंकि गनमैन पर जो हरबा मैं आजमाने जा रहा था उससे फौरन ये बात साबित हो जाती कि उसकी मौत किसी चोर उचक्के की नहीं बल्कि किसी तरबियत याफ्ता कमांडो के हाथों वाक़ हुई है, जबकि हम अपनी मौजूदगी का कोई सबूत यहाँ छोड़ने पर तैयार न थे। मैंने सर हिलाकर उनके हुक्म पर रजामंदी का इजहार किया। कमांडर बहर कैफ कमांडर होता है, उसे हर फैसला काफी सोच समझकर हालात के तहत करना पड़ता है। मुझे तो यही बताया गया था कि अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को तहस नहस कर दो, वरना खुद तबाह हो जाओगे। लेकिन उन्होंने मुझसे ज्यादा पढ़ाई की थी, मुझसे कहीं बढ़कर तजर्बाकार और जान से गुजरने वाले जियाले उनके जेर कमान यहाँ सरगर्म अमल थे। मैं दरवाजे की ओट में खड़ा गनमैन के बरामद होने का मुंतजिर था। उसने लाइट जलाने का तकल्लुफ भी नहीं किया और नदीदे बच्चों की तरह अंधेरे में ही टॉर्च रोशन करके मुख्तलिफ खानों पर टूट पड़ा। शायद 6-7 मिनट के आसाब शिकन इंतजार के बाद वो बाहर निकला और दरवाजा बगैर आवाज पैदा किए बंद करके जो ही मेरी तरफ घूमा, मेरे जिस्म की तमाम तवानाइयां सिमट कर हाथों में आ गईं। फिर एक हाथ उसके मुंह पर मजबूती से जमा कर मैंने उसकी सांस की आमदोरफ्त करीबन मुनक़ता करते हुए उसे खुद से चिमटा लिया। दीवार पर टेक लगाते ही मेरे दूसरे हाथ ने शिकंजे की शक्ल इख्तियार करते हुए उसकी कनपटियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नौवारिद तड़पा मचला, लेकिन कहां तक। महज रगों पर पड़ने वाले दबाव ने उसे महज 1-8 मिनट में ही बेबस कर दिया और वो तूरी की तरह लहराता मेरे बाजू पर झुक गया। स्पाई मास्टर मेरे सर पर पहुंच चुके थे। उन्होंने कोई खतरा मोल लेना न चाहा।
और टेप से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने उसे कंधे पर उठाया और स्पाई मास्टर ने आगे बढ़कर किचन का दरवाजा खोल दिया। हमने उस राइफल से बेनियाज करने के बाद वहीं इस्तराहत फरमाने को लिटा दिया और राइफल लेकर बाहर आ गए। फिर मैंने तो किचन के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी और सर ने वो अनलोड राइफल हाथ ऊंचा करके किचन की छत पर रख दी। ओके कम ऑन। उन्होंने तेज सरगोशी करते हुए साइलेंसर लगा पिस्तौल मुझे थमा दिया। दरवाजा लॉक था। मेरे कंधों पर चढ़कर मास्टर ने खिड़की पर किस्मत आजमाई और थोड़ी देर के बाद हम खिड़की से अंदर कूद गए। ये ड्राइंग रूम था जिसमें से अभी तक शराब के भभूके उड़ रहे थे। मैंने एक हाथ से पिस्तौल थामे, दूसरे हाथ से पेंसिल टॉर्च रोशन की और उसकी महदूद रोशनी में पूरे ड्राइंग रूम का जायजा लिया। एक कार्निस पर रखा एक हार और कुछ नकदी हमारे हाथ लगी जो मैंने अपनी जेबों में ठूंस ली। ड्राइंग रूम के नजदीक पहुंचते ही हमने टेलीफोन के तार काट डाले और बाहर कॉरिडोर में आ गए। हमारे दोनों अतराफ कमरों की कतारें थीं। एक कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी के बल्ब की झलक दिखाई पड़ी। यहाँ भी हमें खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होना पड़ा। अचानक जैसे मास्टर को याद आ गया, उन्होंने अपनी जैकेट की एक जेब से 2 नकाब निकाले। इस जैकेट की जेब में से मेरे देखते ही देखते कई चीजें अब तक बरामद हो चुकी थी। हमने नकाब अपने चेहरों पर मोड़ लिए। अब सिवाय हमारी नाक और आंखों के बाकी सारा चेहरा छुप चुका था। ये विंग कमांडर बाटला की ख्वाबगाह थी। कमरे में हल्की लाइट का बल्ब रोशन था और बेड पर बाटला और एक नौजवान लड़की अपने आप से बेनियाज बेसुध लेटे हुए थे। ये लड़की उस बुढ़े घूसट की बीवी तो हरगिज नहीं हो सकती थी। एक कोने में मेज पर एक ब्रीफकेस धरा था जिससे मुंसलिक हैंड लॉक इस बात की चुगली खा रहा था कि इसमें जरूर अहम दस्तावेजात बंद हैं। मैं तो सीधा उसी तरफ बढ़ गया, जबकि स्पाई मास्टर ने जेब से अपना भीगा रुमाल निकालकर उसे बाटला के मुंह पर जमा दिया। उसने सिर्फ एक दफा जरा सी जुम्बिश की थी, लेकिन वो मास्टर की गिरफ्त थी जो अपना असर दिखा रही थी। मैं ब्रीफकेस उठाए उनके नजदीक आ गया। फिर अचानक अगर मैं होश में ना आ जाता तो शायद वो बंगला हमारा मरघट बन जाता। बाटला के मचलने से लड़की की आंख खुल गई। उसने आंखें खोली और खौफ के मारे चीख भी उसके गले में घुटी रह गई। इन्हीं चंद लम्हात से जो हैरत और खौफ ने उसकी आवाज बंद करके हमें मुहैया किए थे, फायदा उठाकर मैं अपनी जगह से उछला और करीबन उड़ता हुआ उस पर आ रहा। मेरा हाथ उसके मुंह पर जम गया, लेकिन उसमें न जाने इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो मुझसे जोर आजमाई पर तुल गई। इस दौरान खौफ से उसकी आंखें फटी पड़ती थीं। मैं चंद लम्हों के लिए ज़हनी उलझन का शिकार हो गया कि इस बला का क्या करूं। मास्टर ने ये बात नोट कर ली और दूसरे ही लम्हे एक और रुमाल उस तड़पती मचलती लड़की की नाक पर रखा और 2-3 सांसों ने ही उसके कसबल निकाल दिए। हमने उससे निमटते ही उसे कानों में पहने हीरे के टॉप से बेनियाज किया। उसके सरहाने रखे जेवरात उठा लिए। स्पाई मास्टर ने दोनों के सरहानों के नीचे रखे बटवे भी उड़ा लिए और दूसरी मेज पर रखी विंग कमांडर बाटला की घड़ी भी अपनी जेब में डाल ली। बाटला और उसकी दाश्ता को उनके हाल पर छोड़कर हम बाहर निकल आए और दोबारा उसी रास्ते से उन्हीं झाड़ियों तक पहुंच गए। स्पाई मास्टर की पीठ पर बंधा नायलॉन का थैला खुला और हम अपनी पहले वाली हालत में वापस लौट गए। अब हमारी कामयाब मराजियत का आगाज होने वाला था। मुझे इन रास्तों का बिल्कुल इल्म नहीं था। उस वक्त करीबन 1:30 बज रहा था और हमें बमुश्किल 2-2.5 घंटे की मजीद मोहलत नसीब थी। उसके बाद उनमें से कोई ना कोई तो जरूर होश में आ जाता। जेवरात की हमने एक पोटली सी बांध ली और ब्रीफकेस उसी नायलॉन के थैले में मुंतकिल हो चुका था। अब स्पाई मास्टर आगे आगे थे और मैं पीछे पीछे। करीबन 1.5-2 मील चलने के बाद हम एक नाले पर पहुंच गए और जेवरात की पोटली से निजात हासिल कर ली। यहीं एक दरख्त के नीचे बैठकर स्पाई मास्टर ने नायलॉन के थैले से ब्रीफकेस निकाला। फिर उनकी जैकेट से अजीबोगरीब औजार बरामद होने लगे और चंद मिनट के बाद उन्होंने तालों की दूसरी सम्त से ब्रीफकेस तोड़ डाला। पेंसिल टॉर्च की रोशनी में हमने नीले कागजात का जायजा लिया। यही हमारा मकसूद था। खुशी से स्पाई मास्टर का चेहरा खिल उठा। खुद मेरी हालत नाकाबिले बयान थी। मेहनतें और रियाजतें रास आ जाएं तो एक इंबिसात सा अंदर ठाठे मारने लगता है, खुसूसन उन हालात में जब भी हम टारगेट हिट करते। रूहानी कैफ व सुरूर की एक न खत्म होने वाली कैफियत हम पर छा जाती। तब सारे दुख तकलीफें जैसे मिट्टी में मिल जाते और इस बात का एहसास ही न रहता कि अब से थोड़ी देर पहले हम किस अजाब से गुजर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी
उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।